limitations of Bohr model. So first limitation was it is valid for uni-electronic species, है ना? Only valid for uni-electronic species and not valid for multi-electronic species. ठीक है. Second limitation was that Bohr said कि NH by 2 pi will be the let's say electron is going to present in those orbits where in angular momentum is integral multiple of h by 2 pi, right? So there was no explanation for that, है ना? So Bohr has not given any logical explanation to justify by angular momentum in stationary orbit will be, है ना, NH by 2 pi, right? So that is the second limitations. Third, let's say, limitation is Bohr has used classical laws of physics. Classical laws of physics means Newton's law of physics, circular motion, everything is comes into the Newton's law of physics or Newton's law of motion. So Bohr has applied classical laws of physics to explain the quantum physics, you know, or nature, or let's say nature of electron and everything that comes. We are later on we are going to understand that comes into the part of quantum physics. ठीक है. So Bohr explained in quantum physics, that is position of electron, the help of classical laws of physics. क्लासिकल लॉज ऑफ फिजिक्स का मतलब क्या है? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. सो हियर वी हैव यूज्ड ना कि ये सर्कुलर मोशन में चल रहा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स इतना होगा, ऑल दीज थिंग्स, है ना, ये सब बातें, ये सब क्लासिकल फिजिक्स में आती है. ठीक है. क्वांटम फिजिक्स वी आर गोइंग टू सी इन लेट्स से इन आफ्टर सम क्लासेस की क्या होगा क्वांटम फिजिक्स. नेक्स्ट वीक में तो समझेंगे. So that is not true, right? मतलब that is not going to be very accurate, right? Right. Fourth was or could not explain splitting of spectral line. Spectral line का मतलब क्या हुआ? Energy, right? Photons. So splitting of spectral line in magnetic, that is called Zeeman effect. And electric field, that is called Stark effect. So there was two scientists, right? Zeeman and Stark. What they did is कि इन्होंने जो है ना, जैसे मान लो हाइड्रोजन एटम है, so हाइड्रोजन एटम में लेट्स से n equals to 2 है, n equals to 1 है, so there is going to be one photon, right? According to Bohr.
बट अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा ली है, राइट, if there is going to be external electric field or magnetic field, this energy level is going to break into, let's say, two energy level. ठीक है, अब ये बात कैसे आई, right? So if you have slight idea of SPDF, then we are having 1s and n equals to 2 के लिए क्या है 2s and 2p. हाइड्रोजन के लिए 2s और 2p की एनर्जी बराबर होती है. But if you are going to apply external electric field, then what will happen? These energy level are going to split. मेरी बात समझ आ रही है? Say yes. ठीक है, तो फिर से सुनो कि हाइड्रोजन एटम में बोर के हिसाब से क्या था, n इक्वल टू 2 से 1 में आ रहा है, एक ही फोटोन होगा. लेकिन अगर मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लगा लूंगा तो ये जो n इक्वल टू 2 है ये स्प्लिट हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 1s था, n इक्वल टू 1 में 1s था, 2s की एनर्जी 2p के बराबर ही थी, इसलिए हमें हमें एक ही फोटोन दिख रहा था बोर के हिसाब से. बट व्हेन वी आर गोइंग टू अप्लाई लेट्स से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये क्या हो जाएगा, ये n इक्वल टू 2 दो एनर्जी फील्ड में 2s और 2p में अलग अलग बढ़ जाएगा. और अब हमें क्या मिलेगा, एक फोटोन की जगह दो फोटोन मिलेंगे, राइट? So one photon can be like this, or one photon can be like this, right? So this is n equals to 2. Now this is 2p 2s. So this is going to be either Zeeman or Stark effect. तो ऐसा जब हुआ तो he cannot explain कि why it is happening, क्योंकि तब तक ये जो कॉन्सेप्ट है 1s 2s और 2p का नहीं आया था, है ना, ये तो बाद में आया, आपको ने बताया, राइट? ठीक है, तो यहाँ पे दो फोटोन मिले, तो ये स्प्लिटिंग ही कैन नॉट एक्सप्लेन कि ये स्प्लिटिंग क्यों हो रही है ना, एक फोटोन आना चाहिए था, यहाँ दो फोटोन आ रहे हैं, राइट? हाउ इट इज गोइंग टू हैपन, ही कैन नॉट एक्सप्लेन. ठीक है, तो तक ये पता ही नहीं था कि मतलब उसमें सब सेल भी होते हैं. आगे हम पढ़ेंगे कि ऑर्बिट के अंदर या सेल के अंदर सब सेल्स भी होते हैं, है ना, जिनको एसपीडीएफ बोलते हैं, एस सबसेल, पी सबसेल. सो वी आर गोइंग टू सी दैट. सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ बोर मॉडल. जल्दी से लिख लो इनको, है ना, इफ एनीवन इज राइटिंग, write it. Okay. Done? Anyone writing? Done? Okay. Chalo, let's see. Let's move ahead. Next, we are going to understand is photoelectric effect. Okay. Now we have already seen that in cathode ray tube, right? We have already seen if you are going to give the energy to electrons, है ना, यहाँ पे आपने क्या किया, when you are going to apply, let's say this is in cathode ray tube, अभी बस समझना है. So when I have said this is, let's say 100 volt,
That means I have given the 0 volt energy here, 0 volt potential difference here, 0 volt potential here, and 100 volt potential here in comparison to this, है ना? This is smaller, है ना? Negative plate is smaller. The electron which is going to accelerate in this field is going to have kinetic energy. So this is going to be, let's say, kinetic energy if the electron is over here, right? The kinetic energy is nothing but Q into V. V is potential difference. ये बात पता है सबको, है ना? तो इलेक्ट्रॉन जो है because of this potential difference accelerate होगा. Similarly, if any electron is inside, तो उस पर भी attractive force लग रहा है ना? आप धीरे धीरे हायर पोटेंशियल लगाते जा रहे हो तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है. तो कुल मिला के क्या है, अभी तक हमने ये देखा है कि इलेक्ट्रॉन को अगर एनर्जी देंगे तो वो बाहर भी निकल सकता है ना. यही तो हम स्पेक्ट्रम में पढ़ रहे थे कि अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें, देन if we are going to, let's say, give the sufficient energy, electron can emit out, right? ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है. Now if this energy is, let's say, this phenomena is happening in presence of sunlight, ठीक है, if this phenomena is happening in presence of sunlight, so what will happen, the electron are going to come out in let's say in presence of sunlight. So those number of electrons are called photoelectrons, and this effect is called photoelectric effect. Okay? So in short, what I'm trying to say over here is, if you are going to give the energy to electrons, जो electron अंदर है, let's say, है ना, then these electrons can emit out. ठीक है, ये बाहर निकल सकते हैं. तो बस यही photoelectric effect है. Right? So we can write this as emission of electrons when sunlight is falling on certain metals or falling on metal surface is called photoelectric effect. And the emitted photons or emitted electrons are called photoelectrons. ठीक है, so emission of electrons when sunlight of sufficient energy. तो आपको ऐसा देखना है कि जब मेटल पे कोई सनलाइट गिर रही है ऑफ सफिशिएंट एनर्जी, देन व्हाट विल हैपन, इलेक्ट्रॉन्स कैन, है ना, कैन कम आउटसाइड. और जब भी ये इलेक्ट्रॉन्स आउटसाइड आएंगे, देन इट इज गोइंग टू कॉल्ड एज, है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. इसमें कोई प्रॉब्लम? ठीक है, ये बात समझ में आ रही है, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट? हेलो सर. हाँ, हमने पहले ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में थोड़ी अलग कंसेप्ट पढ़ी है, तो अभी उसको हमने नहीं, जो अभी अलग नहीं कहाँ पढ़ी है, सेम ही पढ़ी है. उसमें कुछ तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस था ना. तो लाइट क्या होता है, व्हाट इज लाइट? सेम है. हाँ, लाइट क्या है, सनलाइट या फिर मान लो व्हाइट लाइट, ये सब है क्या? रेडिएशन है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही है ना. हाँ. तो कहाँ गलत पड़ा, अलग पड़ा है? Okay. ठीक है, सेम ही बात पड़ी है, डू नॉट गेट कंफ्यूज. द ओनली टर्म वी हैव यूज्ड डिफरेंट. हम यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी लिख लेते हैं. तो emission of electrons when sunlight of sufficient energy is falling on metal surface is called photoelectric effect, and these emitted electrons are called photoelectrons, right? So what is going to happen, let's say, तो ये जो कैथोड ट्यूब एक्सपेरिमेंट है, इसमें हमने क्या किया, the only thing which we have changed is
हमने इसको सनलाइट से एक्सपोज करा दिया, राइट? दिस इज लेट्स से योर कैथोड, उस पे सनलाइट गिर रही है, ठीक है? क्या होगा? इससे ये इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, राइट? ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू कम आउट। और ये इलेक्ट्रॉन्स के कंफर्मेशन कैसे हो रहा है? We have applied some emitter over here. Yes, we are able to see the deflection. So it is going to confirm, okay, some certain electrons are passing, let's say, coming out from this metal cathode and let's say colliding over here. So this circuit is completed. Okay. Now we can write no. Certain metals, like cesium, rubidium, potassium, barium, etc. Low ionization energy. Shows photoelectric effect in visible light, or you can say white light. Hence, these metals are used in application or application purpose, or you can say in photovoltaic cell. In photovoltaic cell. ठीक है? फोटोवोल्टिक सेल आर दो सेल्स जहां जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। ठीक है? अब बात यह है कि देखो, इलेक्ट्रॉन तो किसी भी मेटल से निकल सकता है, लेकिन किसी भी मेटल से निकालने के लिए उसके हिसाब से आपको एनर्जी डालनी पड़ेगी। ठीक है, राइट? जैसे मान लो अगर मैं आयरन कहूँ तो आयरन से भी इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, लेकिन आयरन में आपका क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप कम होता है। ये बात पता है कैसे आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप कम होता है? कैसे कह सकते हैं? देखो, आयनाइजेशन एनर्जी का काम कैसे निकालते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी, ये आपका न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में एक इंटरेक्टिव फोर्स है। ठीक है, आपको अगर ये इलेक्ट्रॉन निकालना है तो ये इंटरेक्टिव और ये अट्रैक्टिव फोर्स को डोमिनेट करना पड़ेगा, इसको ओवरकम करना पड़ेगा, तभी ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा। So this is giving you a, let's say, slight idea of ionization energy. The only thing is कि ionization energy में हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं गैसियस, let's say, एटम से। ठीक है, हम कहां से निकाल रहे हैं? गैसियस एटम से। तो अगर हम सॉलिड से निकाल रहे होंगे और गैसियस से निकाल रहे होंगे, राइट, वी कैन हैव सम सिमिलैरिटी, राइट? ठीक है, तो एग्जैक्टली जब हम यहाँ पे जो मेटल है, मेटल तो सॉलिड है, इलेक्ट्रॉन हम किससे निकाल रहे हैं? मेटल से निकाल रहे हैं, right? So the ionization energy plays an important role in that. ठीक है, हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे मान लो हमें Na सॉलिड से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, Na प्लस इलेक्ट्रॉन है ना, सॉलिड लेट्स से इलेक्ट्रॉन। सो वी कैन से ओके, इसको हम हीट कर लेंगे, गैस बना लेंगे, गैस से फिर एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे Na प्लस, लेट्स से गैस एंड इलेक्ट्रॉन, एंड देन फिर गैस से हम इसे सॉलिड कन्वर्ट करेंगे, लाइक दैट। ठीक है, तो अच्छा, एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। सो इफ यू आर गोइंग टू फॉलो दिस प्रोसेस और यू आर गोइंग टू फॉलो दिस प्रोसेस, ऑल द एनर्जीज आर गोइंग टू बी सेम। सो यू कैन सी, अगर हमें इसका बिहेवियर देखना है तो इसका एक इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट है आयनाइजेशन एनर्जी, है ना। इस पाथ से जाएंगे तो ये हमें पता नहीं है ना, तो हमें दूसरा पाथ लेना पड़ेगा, सब्लिमेशन, आयनाइजेशन, और राइट, फिर उसके बाद फिर आयन का लेट्स से अपोजिट सब्लिमेशन।
तो कुल मिला के बात यह है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, मेटल से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, that is going to have some similarity with the ionization energy. ठीक है, मैं इसको अभी यहाँ रख कर दे रहा हूँ. Now you have to think about ionization energy is nothing but कि हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी so that we can remove this electron, है ना, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डोमिनेट कर सकें. तो अब क्या होगा, कैसे कैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा या कम होगा? तो अगर साइज बढ़ जाए कहीं पे तो डिस्टेंस बढ़ जाएगी, है ना. हमें पता है k q1 q2 by r स्क्वायर, राइट. तो अगर r बढ़ेगा तो f इलेक्ट्रिक कम होगा, एंड दैट्स व्हाई साइज बढ़ने के कारण आयनाइजेशन एनर्जी कम होती जाएगी. तो वी आर सीइंग इन s ब्लॉक एलिमेंट, है ना, डाउन द ग्रुप, right, you can see this potassium, rubidium, cesium, those are having low ionization energies. Barium also over here, those are having low ionization energy because r is keep on increasing. तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये दूर होता जा रहा है न्यूक्लियस से, और वी कैन से दिस इज लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन, एंड दैट्स व्हाई the ionization energy is going to be less. और ionization energy कैसे सफर होती है? Q1 है चार्ज एट द न्यूक्लियस Ze, Q2 है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट. तो अगर ये Ze है ना, ये लेट्स से चार्ज जो है न्यूक्लियस का चार्ज ये इफेक्ट हो जाए, तो यही होता है कि जैसे जैसे हम, है ना, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, आगे हम पीरियोडिक टेबल में देखेंगे, राइट. तो एक होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है ना, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं कंपैरिजन टू लेट्स से एस ब्लॉक एलिमेंट. अगर हम पीरियोडिक टेबल थोड़ा याद हो तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस. तो उनकी आयनाइजेशन एनर्जी एस ब्लॉक एलिमेंट्स के मेटल से ज्यादा होती है. ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी एस ब्लॉक के मेटल से ज्यादा होती है. तो इतनी बात समझ में आ गई? किसी को कोई कंफ्यूजन है ना? इंपॉर्टेंस ऑफ लो आयनाइजेशन एनर्जी ओवर देयर. तो निकाल तो हम कहीं से भी इलेक्ट्रॉन सकते हैं अगर हमें सफिशिएंट एनर्जी दें, बट जो हमारे अर्थ पे गिर रही है ना, अर्थ पे जो लाइट गिर रही है वो सबसे ज्यादा कौन सी है ना, विजिबल व्हाइट लाइट है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट ऑल दोस हाई एनर्जी लाइट्स आर गोइंग टू बी फिल्टर्ड आउट बाय ओजोन लेयर, है ना. केवल ये व्हाइट लाइट, इंफ्रारेड थोड़ा बहुत, और ये सब है ना, रेडियो वेव वगैरह गिर रही हैं, लो एनर्जी की लाइट्स गिर रही हैं. तो जो व्हाइट लाइट है, ठीक है, जो व्हाइट लाइट है उसमें जो दिखा दे रहा है वो हम यूज कर पाएंगे. बहुत ज्यादा एनर्जी की लाइट तो गिर नहीं रही ना, वो तो फिल्टर हो रही है. समझ आ रही मेरी बात? ये प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ओजोन. तो इसलिए एप्लीकेशन पर्पस के लिए फोटोवोल्टिक सेल में वी आर यूजिंग दीज मेटल्स. यहाँ तक कोई डाउट? कैन बी रिमूव इलेक्ट्रॉन्स अदर देन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन. पहले ये बताओ कि अगर हम एनर्जी देंगे तो सबसे पहले कौन निकलेगा? बाहर वाला, है ना. सबसे पहले कौन निकलेगा? बाहर वाला इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा. तो चांसेस ये है कि अंदर वाला भी इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, जैसे एक्सरे जनरेशन में होता है, बट सबसे पहले क्या होगा यहाँ पे? बाहर वाले के निकलने की चांसेस ज्यादा है. Na is not present in these metal. Yes, Na can also be used, but ये ज्यादा यूज होते हैं. मैंने बोला कोई भी मेटल यूज हो सकता है, राइट. What I said is any metal can show photoelectric effect, but these let's say metal shows easily, है ना. Show effect shows effect photoelectric effect easily, your little, so that you will understand. ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा और आगे, इसके बारे में थोड़ा और समझते हैं. So there is one thing कि अगर मान लो if we are not, let's say, giving the sufficient energy, and then the photoelectron will not be let's say electron will not emit out, right. So there are, let's say we are going to write experimental finding.
photoelectric effect. First point is that we are assuming, or we can say not we are assuming like that, since what is happening, there is no time lag. ये मैं पहले बता चुका हूँ time lag का, है ना. As soon as the light is striking to electron, the electrons are coming out because they are absorbing the energy of photon, right? जैसे हमने स्पेक्ट्रम में पढ़ा है, जैसे ही लाइट गिरी, जैसे ही फोटोन एब्जॉर्ब हुआ, राइट, तुरंत इलेक्ट्रॉन निकल आएंगे, राइट. सो एक मिनट, किसी को डाउट है? मनस्वी, राइट, यू हैव एनी डाउट? चलो, एनीवे, ठीक है. तो मैं क्या बोल रहा था? हाँ, एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग. हाँ, सो वी नो दैट कि if electrons are going to, let's say, absorb the energy, then they are going to come out, right, without any time lag, right? That's the major reason that we said कि light is having particle nature, right? ठीक है. So there is no time lag, like between, है ना, between light falling on metal surface and emission of electrons. Means, you know, as soon as metal surface is exposed to light, photoelectrons are emitting from surface, है ना. This was explained by particle, or this explained, let's say, I don't need to write it, we know that. Okay, so this effect or this phenomena or this, let's say, reasoning was explained by particle nature, कि भाई लाइट का पार्टिकल नेचर है, जो भी एनर्जी होगी सारी की सारी ट्रांसफर होगी इलेक्ट्रॉन को, है ना. Hence, or we can write for photoelectric effect, one electron is absorbing one photon only, है ना. तो ऐसा तो है नहीं कि लगातार फोटोन आते रहे, आते जा रहे हैं. वो जो टाइम लेग की बात थी वो यही तो मैंने बोला था कि मान लो अगर हमें 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए बाहर निकलने के लिए, या 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए, उससे ज्यादा की एनर्जी चाहिए बाहर निकलने के लिए, जो हाइड्रोजन एटम में देखा था, तो 13.6 का फोटोन गिरेगा तो तुरंत बाहर निकलेगा. वी कैन नॉट से कि पहले मान लो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का निकला, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एब्जॉर्ब हुआ, फिर उसके बाद मैंने 8.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया, तो फिर 2 फोटोन एब्जॉर्ब करके 13.6 बन जाएगा, है ना. So this is we are not going to say. So we are saying कि one electron is absorbed by one photon only, or one photon is opposite. One photon is absorbed by, you know, absorbed by one electron only. ठीक है. So one photon is absorbed by one electron only. So that's why there is not going to be any time lag, है ना. जैसे ही फोटोन गिरा, इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब किए, बाहर निकलेगा. अगर वो सफिशिएंट एनर्जी नहीं होगी तो बाहर नहीं निकलेगा, एक्साइट होगा, फिर वापस आ जाएगा, राइट. ठीक है. और हो सकता है एक्साइट भी ना हो, इट डिपेंड्स ऑन कि किस तरह की एनर्जी हमने दी है, राइट, और कौन सी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की है.
सो दिस इज द ऑल द पॉसिबिलिटी, राइट। अगर हमने सफिशिएंट एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, आयनाइजेशन के हिसाब से समझ सकते हो, है ना। अगर हमने एनर्जी दी तो हो सकता है कि वो इंटरेक्ट ही ना करे, अगर कम एनर्जी दी तो, और हो सकता है वो एक्साइट हो गए और वापस आ जाए, है ना, ऐसा कुछ भी हो सकता है, बट बाहर नहीं निकलेगा, है ना। तो हमें एक मिनिमम एनर्जी देनी पड़ेगी, राइट। यस। सर अगर मैंने पहले 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डाल दिया तो n इक्वल्स टू 2 में आ गया, और एकदम जल्दी मैंने 3.4 भी डाल दिया, तो फिर बाहर निकल जाएगा पहले इलेक्ट्रॉन। वापस जाएगा नीचे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ओके सर। राइट। तो पहले 10, क्योंकि वो 10⁻⁸ सेकेंड ही रुकता है, तो वो पहले ऊपर जाएगा, फिर डी एक्साइड होकर ग्राउंड स्टेट में जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा कि मतलब एक के बाद एक एब्जॉर्ब करे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, सो राइट, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट वी हैव ऑलरेडी सेड देयर इज अ मिनिमम एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। सो नॉट ऑल एनर्जी, है ना, नॉट, वी कैन से, or we can say there is minimum energy or frequency, there is minimum energy, or you can say frequency, है ना, क्योंकि एनर्जी ऑफ फोटोन किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पे, h न्यू, एंड देयर इज मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू emit electrons, there is minimum energy required to emit electrons, है ना। this minimum energy is called minimum, let's say frequency is called threshold frequency, and that is called as nu naught. So if, है ना, hence if energy of photon is less than h nu naught, no photoelectric effect, है ना। एक सर्टेन एनर्जी से कम की एनर्जी है तो नो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। इफ एनर्जी ऑफ फोटोन is greater than or equals to h nu naught, then photoelectric, yes, photoelectric effect, right। इतनी बात समझ में आ रही है, and that is called threshold frequency। एनी डाउट टिल हियर भाई? किसी को कोई डाउट समझ में आ रहा है? यस नो, एक पोल ले लेते हैं, इतनी बातें समझ में आ रही है, से यस नो, क्योंकि सुबह सुबह की क्लास है, आधे लोग तो सो जाते हैं, रात भर पढ़ते बेचारे 2-2, 3-3 बजे तक। है कोई ऐसा तो 2-2, 3-3 बजे तक गेम खेल रहा हो? अच्छा, कौन पढ़ रहा है 2-2, 3-3 बजे तक? है कोई खेल रहा हो? कोई खेल नहीं रहा? अच्छा, कितने लोगों को क्लास में नींद आती है ऑनेस्टली, है ना? चलो, आई टेक वन मोर पोल, राइट। ठीक है, तो ये देखो भाई, 98% लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब शेयर रिजल्ट, ओके, नाउ आई एम जस्ट रीलॉन्चिंग।
कितने लोगों का के साथ ये चैलेंज है कि उन्हें क्लास में नींद आती है? से यस नो। जिनको नींद आती है से यस, जिनको नहीं आती नो। सुबह वाली क्लास में नींद आती है। देखो भाई, रिजल्ट्स आर नॉट वेरी लेट्स से एक्साइटिंग है ना। 32% लोगों को नींद आती है, राइट। सो एनीवे, जिन लोगों को नींद आ रही है ना, वो क्या कर सकते हैं? वो लोग कुछ नहीं कर सकते, सो जाए। बट एनीवे, right, what you can do is you can wash your face or something if you really wants to focus. ऐसे मैं बीच बीच में चिल्ला दिया करूं क्या? क्या कर रहे हो? नहीं, ऐसा होता है कि क्लास में क्या है ना, क्लास में तो यू कैन सी ना, तो किसी को डांट दिया राइट, तो वो नींद चली जाती है। नाउ यस, इट हैपेंस because I am speaking with the same pitch again and again, right? So it happens, right? People started to sleep. और केमिस्ट्री में ही सबसे ज्यादा थ्योरी है, पूरा एकदम सुनना ही सुनना है, राइट? ये ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो आई थिंक कि फिजिक्स और मैथ्स में तो थोड़ा तुम्हारा पेन चल रहा है ना, ये क्वेश्चन सॉल्व करने में। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो है ना, ऑनेस्टली, जो लाइक नोट्स मेरे साथ बनाते हैं ना, लिखते हैं, लिखते जाते हैं ना, वो यस लिखना है, बाकी लोगों को नो, राइट? जो लोग लिख रहे हैं ना, उनको नींद नहीं आएगी, तो आई एम जस्ट फ्री लॉन्चिंग। जो लोग नोट्स लिखते हैं और जो स्नैपशॉट लेते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। वाह, बहुत लोग कह रहे हैं 95% पीपल आर सेइंग, तो उसमें कुछ लोग झूठ बोल रहे हैं। तो मतलब मैं किसी से कहूँ कि अपने नोट्स दिखाओ, तो मुझे मुझे पूरे नोट्स मिलेंगे? अगर एट रैंडम में किसी को बोलो कि भाई मुझे पूरे दिखाओ, तो पूरे नोट्स मिलेंगे? तो फिर वो गलत है ना, जो पूरे, जिनके पूरे नहीं है वो यस क्यों लिख रहे हैं? तो कितने लोग ऐसे हैं जिनके पूरे हैं? अगेन आई एम रिलॉन्चिंग द पोल। कितने लोग ऐसे हैं जिनके पूरे नोट्स हैं, देन से यस, उन्होंने लिखे हुए हैं? ऑफ कोर्स सब जगह नहीं होता भैया। सब लोग तुम्हारे जैसे नहीं होते हैं। इंडिया में तो कुछ भी फॉर ग्रांटेड नहीं है। ऑफ कोर्स यू कैन नॉट से टू एनीथिंग। देखो 70% पीपल आर 69 है ना, जो सो नहीं रहे हैं। वहां पे याद है 68% पीपल आर सेइंग कि दे आर नॉट स्लीपिंग, दैट 32% आर सेइंग कि they are feeling sleepy। वही 32% इधर है जिनके नोट्स पूरे नहीं है। ये संजना, बोलो बेटा, एनीथिंग यू आर सेइंग संजना? आई थिंक माय मिस्टेक। चलो लेट्स मूव ऑन। ठीक है, तो अगर फोटोन की एनर्जी h न्यू नॉट से ज्यादा होगी तो वही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखेगा, या उसके बराबर भी होगी तो भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखेगा, और अगर उससे कम होगी तो फिर क्या होगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दिखेगा। और क्या बात इंपॉर्टेंट है, तो जो ये फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी? थ्रेशोल्ड, लेट्स से एनर्जी
that is also called as work function. So there is another thing. Energy corresponding to threshold frequency is called threshold energy or work function. ठीक है, work function is represented by phi or you can say W. ठीक है, ये this is called phi. So remember only phi, let's say. So it is represented by phi. तो जो जितनी भी एनर्जी हमें देनी पड़ी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए वो क्या कहलाएगा, उसको बोलेंगे वो दैट इज मिनिमम एनर्जी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी और वर्क फंक्शन. ठीक है, फंक्शन represented by phi, work function, and work function is going to be showing the characteristic of metal. तो ये this work function, the value of work function depends on the nature of metal, कि कौन सी वाली मेटल है. तो जिसकी लो आयनाइजेशन एनर्जी होगी उसका वर्क फंक्शन भी लो होगा. Again, what is the difference between work function and ionization energy? Ionization energy is defined for isolated gaseous atom and work function is defined for solid. मैंने आपको बोला था ना, हमें सॉलिड से इलेक्ट्रॉन निकालना है, हमें गैस से नहीं निकालना है. सो सम रिलेशन इज देयर. ठीक है, दैट वर्क फंक्शन इज गोइंग टू इम्पैक्टेड बाय द आयनाइजेशन एनर्जी. ठीक है, बट एग्जैक्टली आयनाइजेशन एनर्जी नहीं है. एग्जैक्टली क्या है वर्क फंक्शन. क्या डिफरेंस है? वर्क फंक्शन इज डिफाइंड फॉर सॉलिड मेटल एटम, है ना, सॉलिड से निकल रहा है, और आयनाइजेशन इज डिफाइंड फॉर गैसियस एटम. समझ में आ रही बात? ठीक है, सो वर्क फंक्शन, वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन, वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन डिपेंड्स ऑन मेटल. ठीक है, we can write this. ठीक है, so this is called work function. So we can write phi is nothing but, अब देखो एक और बात, जब हम मान लो एक h न्यू नॉट से लेट से ज्यादा एनर्जी दे रहे हैं तो क्या होगा. लेट से अभी स्पेक्ट्रम में हम देख रहे थे, दिस इज -13.6, ये इंफिनिटी पे है, लेट से 0 है ना, ओवर हियर है ना, ये इंफिनिटी, तो एनर्जी हो गई 0. ठीक है, तो अगर हम 13.6 दे रहे थे तो क्या हो रहा था, अगर हमने 13.6 दिया तो इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर निकल गया एटम की सरफेस से, जस्ट बाहर. E इक्वल्स टू इनफाइनाइट का मतलब क्या है, जस्ट सरफेस से जस्ट बाहर निकल गया, है ना, राइट. अगर मान लो हम 13.6 की जगह 14.6 दें तो क्या होगा, 13.6 से तो जस्ट बाहर निकलेगा, रिमेनिंग वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, है ना, पॉसिबल वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी. यस, अंडरस्टूड. जितनी भी ज्यादा एनर्जी देंगे वो क्या देगा, उसको एनर्जी देगा, काइनेटिक एनर्जी, मूवमेंट की एनर्जी देगा, मोशन होगा उसके कारण, काइनेटिक एनर्जी. तो यहाँ पे भी यही हो रहा है, अगर आज ज्यादा एनर्जी की लाइट गिर रही है देन व्हाट विल हैपन, द, है ना, इलेक्ट्रॉन विल हैव काइनेटिक एनर्जी. So if energy of photons falling on metal surface is greater than h nu naught, emitted photons will have kinetic energy. तो वो क्या हो गया, that we can write total energy is nothing but total energy of photon. This is the energy given to electron, है ना. Total energy of photon is nothing but, this is the energy given to electron, is nothing but work function plus kinetic energy max. यहाँ पे max इसलिए बोल रहा हूँ
क्योंकि दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी। इतनी बात समझ में आ रही है? कोई प्रॉब्लम? So what is going to be over here? We can write h nu is nothing but h nu. The energy of photon is nothing but h into nu. So h nu is nothing but h nu naught plus kinetic energy max. So maximum kinetic energy can be h nu minus h nu naught, or you can say kinetic energy maximum can be hc by lambda minus hc by lambda naught, right? So this is going to be h nu minus nu naught, and this is going to be hc 1 upon lambda minus 1 upon lambda naught, right? Can be correlate, है ना? ऐसे lambda naught क्या हो जाएगा? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ या मैक्सिमम वेवलेंथ। मिनिमम एनर्जी तो क्या हो जाएगा? मैक्सिमम वेवलेंथ, है ना? तो lambda naught क्या है? lambda naught is threshold wavelength or maximum wavelength which can show photoelectric effect. एनर्जी कम है, मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए? एच न्यू नॉट। तो उसके करस्पॉन्डिंग जो लैम्डा मिलेगा वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा, है ना भाई? इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी है वो एच न्यू नॉट है, उससे ज्यादा होगी तो अपने आप ऑब्वियसली निकलेगा। तो एच न्यू नॉट मिनिमम एनर्जी है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो लैम्डा होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम। उससे कम अगर वेवलेंथ होगी तो अपने आप निकलेगा। समझ में आ रही है बातें? रिलेशंस? एनी प्रॉब्लम थ्योरी में? तो ये कुछ ऐसा ही है, जैसे मान लो मैं बोलूं कि देखो भाई ऐसा है कि मूवी देखने के लिए एक मिनिमम टिकट प्राइस है। अगर आपके पास लेट्स से मूवी देखने के लिए 300 रुपए का एक टिकट प्राइस है, अगर आपके पास 300 रुपए है तो आप अंदर जा सकते हो, 300 रुपए नहीं है तो आप घर जाओ वापस, है ना? सो द इलेक्ट्रॉन विल नॉट इमिट। अब 300 रुपए के बाद कितने ज्यादा रुपए हैं, है ना? हाउ मेनी लेट्स से मोर रुपीज यू आर हैविंग, वो कैसे पता चलेगा, है ना? 300 रुपए आपने दे दिए। अब ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हमें पता कैसे चलेगी, है ना? ये तो हमने वैल्यू लिख ली है, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, राइट? अगर हमें ये पता हो कि इस फ्रीक्वेंसी की लाइट गिर रही है तो हम बता देंगे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, लेकिन हमें ये पता ना होगा किस फ्रीक्वेंसी की लाइट गिर रही है। जैसे सनलाइट गिर रही है, राइट? एंड यू वी वांट टू चेक कि भाई इसमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या हो सकती है, तो क्या करेंगे? सो देयर इज अ वन टर्म इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल, वी विल कम टू दैट पॉइंट, ठीक है? तो पहले ये समझ में आ गया, अगर हमें एनर्जी ऑफ फोटोन पता है, इंसिडेंट एनर्जी ऑफ फोटोन और बग फंक्शन पता है, तो हम काइनेटिक एनर्जी मैक्स निकाल लेंगे। अच्छा नोट, एक और बात, आईआईटी में एक क्वेश्चन आया था कि मान लो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मैं क्वेश्चन की एग्जैक्ट लैंग्वेज नहीं बोल रहा हूँ, बट दिस इज द क्वेश्चन कि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की लेट्स से एनर्जी गिरी है एंड वर्क फंक्शन इज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, yes or no? This was the question. है ना? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिरी है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन है, तो वो कह रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकले हैं कैन बी और मे बी 0। सो दिस स्टेटमेंट इज राइट और रॉन्ग? सो दिस स्टेटमेंट इज राइट, ठीक है? व्हाई दिस इज राइट? बिकॉज इट कैन हैपन कि जो एक्सेस एनर्जी है वो हीट की में लॉस हो जाए, राइट? और मतलब उस एनर्जी, वो उतनी सारी एनर्जी जो है ना, वो किसी और दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करके लॉस हो जाए। मान लो सारे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं और एकदम से कोलिजन हुआ, कुछ हुआ, राइट? बिकॉज ऑफ दैट सम एनर्जी इज गोइंग टू लॉस। तो अगर ऐसा होगा तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 0 से लेकर काइनेटिक एनर्जी मैक्स तक हो सकती है। मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्स का मतलब है ये पॉसिबल है, मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है, बट इट डजंट मीन कि ऑलवेज यही वैल्यू होगी। इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी कभी कभी काइनेटिक एनर्जी मैक्स से कम भी हो सकती है। सो दिस इज वी आर गोइंग टू राइट नोट द
काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स है ना, मे बी जीरो as certain energy can lost as heat. ठीक है, सो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आईआईटी में वो क्वेश्चन है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, जीरो के बराबर और इससे बड़ी, या फिर काइनेटिक एनर्जी मैक्स के बराबर और उससे कम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। अंडरस्टूड, इतनी बात, कोई किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत है ना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, एक मिनट, हाँ हेलो बोलो सर। बेटा। हाँ सर लेकिन अगर जब फोटोन जब इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है तो इट हैज टू मूव अवे फ्रॉम द एटम ना। हाँ, अगर काइनेटिक एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन उधर ही बैठा है तो एमिट कैसे हुआ फिर? मतलब फिर से बोलो। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड बाय एन एटम तो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी रहेगा ना, वेलोसिटी जीरो कैसे हो सकता है इलेक्ट्रॉन का अगर एमिट हुआ है तो? क्यों, वो तो एनर्जी वेलोसिटी जीरो स्टेट की एनर्जी है ना, तो इक्वल टू इनफाइनाइट में पहुंचा तो जीरो हो गई ना। अब वो अंदर रिवॉल्यूशन वाली थोड़ी ना लग रही है, वो जस्ट बाहर निकल गया। ओके सर। ठीक है, जस्ट बाहर निकल गया, अब वो एटम में नहीं है ना फोर्स भाई। और अगर मान लो हम बोर मॉडल के हिसाब से भी समझें, ठीक है, बोर मॉडल के हिसाब से भी समझें, तो क्या हुआ, अभी तक जब वो किसी ऑर्बिट में मूव कर रहा था तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण सर्कुलर मोशन कर रहा था, इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण हमने उसे एटम से बाहर निकाल दिया। अब क्या हुआ, अब तो क्या कहते हैं, we have overcome the electric force। ठीक है, तो उसके कारण क्या होगा, अगर हमने बराबर अमाउंट से अगर मान लो किया है तो फिर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रेस्ट में हो सकता है। सो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कैन बी जीरो। तो ये याद रखना है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ऐसा भी हो सकता है। ठीक है मोनिश, समझ में आ गया? ओके सर। यस सर। अब बात करते हैं, यस, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब बात करते हैं ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, है ना, हाउ टू फाइंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। मगर अगर आपको नहीं पता हो, आपको केवल इतना पता हो कि इसका वर्क फंक्शन कैसे है। अच्छा, वर्क फंक्शन कैसे निकालेंगे, जैसे इमेजिन वर्क फंक्शन कैसे निकालेंगे, मान लो ये मेटल है, ठीक है, मेटल सरफेस है जिस पे ये लाइट गिर रही है, राइट, और आपको पता है इस पे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे, राइट। हमने क्या किया है यहाँ पे, जो सर्किट लगा दिया मान लो कुछ भी, राइट, एंड जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गिरा, राइट, मान लो यहाँ पे लेट्स से हमने एक ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया, इसमें एक एमिटर लगा दिया है। जैसे हमने लाइट यहाँ पे गिराई, है ना, लाइट की इंटेंसिटी को हम सॉरी फ्रीक्वेंसी को वेरी कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को हम क्या कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी वी आर चेंजिंग। और हम देख रहे हैं कि भाई कौन सी ऐसी फ्रीक्वेंसी है जिसपे ये डिफ्लेक्शन दिखा देगा। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जा रहे हैं, न्यू लेट्स से न्यू वैल्यू, एक पर्टिकुलर वैल्यू पे जाके ये न्यू नॉट के बराबर हो जाएगा, मतलब जितना रिक्वायर्ड है, और यहाँ पे ये डिफ्लेक्शन शो करने लग जाएगा, ये करंट सर्किट पूरा हो जाएगा, डिफ्लेक्शन दिखेगा, देन वी आर गोइंग टू से ओके दिस फ्रीक्वेंसी इज न्यू नॉट, और इसके हिसाब से वर्क फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, नाउ इफ वी वांट टू चेक कि अगर हमें ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू नहीं पता है ना, और वी वांट टू चेक कि व्हाट इज द लेट्स से काइनेटिक एनर्जी, तो क्या करें। तो देखो अभी क्या हो रहा है, जैसे मैंने 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दी थी और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाज वर्क फंक्शन, तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो सकती है इस इलेक्ट्रॉन के पास जब वो बाहर निकल रहा होगा। ठीक है, अब अगर मान लो मैंने प्लेट उल्टी कर दी, मान लो ये बड़ा कर दिया, है ना, एंड दिस इज स्मॉलर, मान लो ये निगेटिव हो गया, तो अब क्या होगा, ये निगेटिव जो है इसको डी एसेलरेट कराएगा, रिपेल करेगा।
कितनी एनर्जी से रिपेल करेगा डिपेंड करता है कि कितना वोल्टेज लगाया। लेट्स से हमने 1 वोल्ट लगाया है, मान लो हमने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट लगाया, तो ये क्या करेगा, इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड इसका 1 वोल्ट है ना, 1 वोल्ट के कारण क्या करेगा यहाँ पे, राइट, इसकी एनर्जी को कम करेगा। ठीक है, इसकी एनर्जी को कम करेगा, कितना करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कम करेगा। आपको बताया था मैंने काइनेटिक एनर्जी, है ना, राइट, change in kinetic energy is nothing but change in potential energy. This is, you remember, change in potential energy is Q into V. तो for electron क्या हो जाएगा, E into V, potential difference is 1 electron volt, 1 volt, sorry. So we are going to say that is 1 electron volt. This is kinetic energy final minus kinetic energy initial. ठीक है, तो ये किस में है, नेगेटिव में, राइट, because we have applied negative potential, right? So this is minus. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज गोइंग टू बी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी माइनस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो दिस इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, करेक्ट। तो ये क्या हुआ, एक तरह से ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ये क्या कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी को कम कर रहा है। अगर हमने प्लेट उल्टी कर दी है, राइट, वी हैव चेंज द पोलैरिटी ओवर हियर। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से निकल रहा था, ये जब यहाँ पहुंचेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही रह जाएगी। अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से वो निकला, लेट्स से हमने बोला है काइनेटिक एनर्जी 0 से लेके 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कुछ भी हो सकती है, तो जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे 0 हो जाएगी जब ये पहुंच रहा होगा यहाँ पे, जस्ट यहाँ पे जाके टकरा पाएगा। अगर इसकी एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से थोड़ी भी कम होगी, लेट्स से 0.99 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये यहाँ पे नहीं पहुंच पाएगा। समझ में आई बात, है ना। तो एक तरह से सब इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट घट जाएगी। मान लो अगर हमने 2 वोल्ट लगा दिया, ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस हमने यहाँ पे 2 वोल्ट लगाया, तब क्या होगा, जैसे ही 2 वोल्ट लगाएंगे यहाँ पे क्या होगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन जो भी है, राइट, वो इस पे यहाँ पे नहीं पहुंच पाएगा। मतलब ये 2 वोल्ट एक मैक्सिमम लिमिट है, जब तक इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा। 2 वोल्ट से थोड़ा सा भी ज्यादा जाएंगे, राइट, थोड़ा सा भी जैसे ही ज्यादा जाएंगे इलेक्ट्रॉन का पहुंचना बंद हो जाएगा। तो कितनी भी एनर्जी, जैसे मान लो मैंने 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगा दिया, 2.1 वोल्ट का लगा दिया, तो इसके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का भी होगा, वो भी नहीं पहुंच पाएगा, है ना, राइट, क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 कहीं हो गई होगी पहले ही। इतनी बात समझ में आ रही है, यस और नो, है ना। रिटार्डेशन के कारण उसकी लेट्स से, है ना, काइनेटिक एनर्जी पहले ही कहीं 0 हो गई होगी, तो इसलिए इट इज नॉट गोइंग टू रीच टू दिस मेटल, लेट्स से प्लेट, और इससे हमें पता चलेगा कि अच्छा अब करंट नहीं आ रहा है। समझ में आया। तो ये जो पोटेंशियल है ना, 2 वोल्ट, जहां पे हमने वो देखा है ना लास्ट, लेट्स से डिफ्लेक्शन, और जहां पे हमने देखा कि ये इलेक्ट्रॉन बस अब जाना बंद हो गए, ये जो 2 वोल्ट इलेक्ट्रॉन लेट्स से पोटेंशियल है, दिस इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल, एंड दिस 2 वोल्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल इज गोइंग टू गिव अस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। समझ में आया। अभी कोई डाउट पूछ रहा था, पूछ लो भाई। यस नहीं सर, सॉरी सर, आई थिंक मेरा हैंड ऑन ऊपर ही रह गया था। अच्छा ठीक है, भूल गया। तो इतना समझ में आ गया, तो इसको अभी हम लिख लेते हैं। तो एक नया टर्म है, दैट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। अच्छा, before we are going to, let's say, stopping potential, there is a graph. Let's draw a graph before, let's say, going towards the stopping potential. So let's say if we are going to write kinetic energy max, let's say, and the frequency over here nu, तो आपको पता है ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी, एक सर्टेन न्यू नॉट वैल्यू तक तो 0 है, क्योंकि यहाँ तक तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं। इनफैक्ट न्यू नॉट पे भी 0 है। न्यू नॉट के बाद आपकी ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कुछ ऐसे आएगी, राइट, है ना।
काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट h न्यू, राइट, माइनस h न्यू नॉट, है ना। काइनेटिक एनर्जी हमने लिखा है y पे, तो लिख लिया y, फ्रीक्वेंसी लिखिए x पे, तो ये हो जाएगा आपका kx या mx माइनस c, ठीक है। तो ये फॉर्मूला ये हो गया आपका। तो ये जो माइनस मतलब यहाँ पे जो c वैल्यू है, अगर इसको हम y इक्वल्स टू mx प्लस c से कंपेयर करेंगे, राइट, तो इसका जो इंटरसेप्ट है वो नेगेटिव में जा रहा है ना, ये यहाँ नेगेटिव में कट कर रहा है। ये जो इंटरसेप्ट है माइनस c, है ना, वो नेगेटिव इंटरसेप्ट हो गया। तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या कहलाएगी, है ना, दिस वैल्यू इज गोइंग टू कॉल्ड एज h न्यू नॉट। समझ में आ रही है बात, माइनस h न्यू नॉट, राइट। तो ये अगर इंटरसेप्ट को पीछे लेके जाएंगे तो ये जहां पे कट करेगा वो हमें क्या देगा, वर्क फंक्शन देगा। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? डायरेक्शन ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन विल बी अपोजिट टू डायरेक्शन। देखो फोटोन पे तो कोई चार्ज ही नहीं होता ना, फोटोन की कहां से बात आ गई डायरेक्शन में। सो स्टॉपिंग पोटेंशियल की डेफिनेशन बताएंगे, देन वी विल कम टू दैट पॉइंट कि क्या होगा, ठीक है। आकाश, इतनी बात समझ में आ रही है कि काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट, काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज नथिंग बट h न्यू माइनस h न्यू नॉट। तो हमने काइनेटिक एनर्जी को y लिख दिया और न्यू को लेट्स से x लिख दिया, बिकॉज वी आर वेयरिंग दिस, एंड दिस h न्यू नॉट इज नथिंग बट c वैल्यू आ गई यहाँ पे, लेट्स से। So if we are going to compare with y equals to mx plus c, तो प्लस c जो ये इंटरसेप्ट होगा ये नेगेटिव इंटरसेप्ट हो जाएगा, राइट। उसका स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव, है ना। स्लोप क्या होगा यहाँ पे, राइट, पॉजिटिव। वो किसके बराबर हो जाएगा, अगर हम h के हिसाब से ले रहे हैं तो h के बराबर हो जाएगा, राइट, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ये स्लोप पॉजिटिव रहेगा, ऐसे रहेगा, ठीक है। चलते हैं आगे। m is what is m? m is slope बेटा। m क्या होता है, स्लोप। ये आपने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन नहीं पढ़ी है, y इक्वल्स टू mx प्लस c। हाँ या ना तो बता दो भाई, पढ़ी है नहीं पढ़ी है, हमको क्या नहीं पढ़ी है। देखो स्ट्रेट लाइन की एक इक्वेशन होती है, दैट इज कॉल्ड y इक्वल्स टू mx प्लस c, ठीक है। where m is tan theta, m is slope, that is called tan theta, and c is intercept। किसी ने पढ़ी है भाई ये, किसी ने ये y इक्वल्स टू mx प्लस c पढ़ा हुआ है? तो कोऑर्डिनेट 10th में है या नहीं है? थोड़ा बहुत इस स्ट्रेट लाइन वगैरह इनकी ये है या नहीं है? यस ना, तो हाँ, तुमने आ रहे हैं, तुमने मिस की क्लास। दिस कॉन्सेप्ट वाज कैंसिल्ड, ओके। हाँ भाई, तुम लोगों के साथ ये भी तो प्रॉब्लम है कि तुम्हारा कुछ कुछ पार्ट उड़ा ही दिया गया है। कोई बात नहीं यार, अभी ये समझ लो, जैसे मैं व्हाट आई वांट टू से इज, इसमें सिंपल केस ले रहा हूँ। लेट्स से आई एम टेकिंग c इज 0। c का मतलब होता है कि ये यहाँ पे कहाँ कट कर रहा होगा, राइट। अगर x इस वैल्यू में मैं x को 0 डाल दूं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, c हो जाएगी, है ना। इस वैल्यू में x की वैल्यू को 0 डाल दूं तो ये c आ गया। तो ये जो लाइन है आपकी, वो y एक्सिस को जहां पे भी कट करती है उसको इंटरसेप्ट बोलते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे न्यू की वैल्यू 0 डाल दूंगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, h न्यू नॉट माइनस h न्यू नॉट हो जाएगी, राइट। तो ये कहाँ कट करेगा, ये इंटरसेप्ट कहाँ हो गया, यहाँ पे हो गया, राइट। सो दैट इज नथिंग बट वर्क फंक्शन। ये कहाँ कट कर रहा है ना, वर्क फंक्शन की वैल्यू आ गई आपकी, है ना। ये लाइन जहाँ पे भी कट करेगी, राइट। अब ये दो गया इंटरसेप्ट। अब मान लो मैं अभी सबसे सिंपल केस ले रहा हूँ कि आपका ये c0 है, मान लो y इक्वल्स टू mx ग्राफ है, ठीक है। तो y इक्वल्स टू mx अगर मान लो ग्राफ है, राइट, एंड एनी पॉइंट मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, उसके करस्पॉन्डिंग मुझे यहाँ पे x मिल जाएगा,
मान लो ये पॉइंट लिया, तो ये मुझे यहाँ पे अगर मैं पैरेलल लाइन खींचूंगा तो मुझे ये वैल्यू y की मिलेगी और ये वैल्यू x की मिलेगी। ये x की वैल्यू मिल गई, ये मुझे y की वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो m इक्वल्स टू, जैसे y इक्वल्स टू mx लिखा है मैंने, y इक्वल्स टू mx, m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y/x। और y/x है क्या, अगर मैं इसको थीटा बोलूं ये स्लोप को, तो दैट इज tan थीटा, है ना, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, राइट। सो दिस इज tan थीटा। तो m क्या है आपका, स्लोप, दैट इज tan थीटा। समझ में आया भाई? जिन लोगों को ये बातें नहीं पता थी उनको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया भाई, राइट। एनी प्रॉब्लम? तो आप लोग पूछ लिया करो जब भाई जो नहीं पता हो आपको, बिकॉज आई डोंट नो कि कितना बेसिक आता है क्या नहीं आता है, एंड आई हैव नो प्रॉब्लम इन एक्सप्लेनिंग ऑल दोज बेसिक्स। चलो भाई आगे चलते हैं। So we were talking about stopping potential, right? Stopping potential, that is called Vs, let's say. So what will happen over here if we change the polarity of electrodes, or I'm going to say, or if we apply negative potential and keep on increasing this potential difference. This potential difference. So at a certain potential difference, there will be no photocurrent in circuit. There will be no photocurrent, or current will stop. We can say पहले तो वही इलेक्ट्रॉन पहुंच भी जा रहे थे कैसे भी कैसे, तो करंट चल रहा था, राइट। सो देयर विल बी नो photocurrent. Photocurrent मतलब photo electrons, right? So there will be no photocurrent in the circuit. And this, or we can say photocurrent will stop. And this potential is called stopping potential. Stopping potential Vs. तो समझ लेते हैं यहाँ पे एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। Let's say this is going to be your positive plate, इस पे let's say लाइट गिर रही है, so at certain value there is going to be no deflection in emitter. तो हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया या फोटो करंट क्या हो गया, स्टॉप हो गया. Whatever the value over here is, that is going to be called as stopping potential. What is going to be the relation between stopping potential and kinetic energy? तो हम बोलेंगे कि भाई इसने क्या किया, just it is able to sufficiently stop the most energetic electron. ये stopping potential क्या कर रहा है, उस
मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन जिसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है उसको स्टॉप करने में सक्सेसफुल है, राइट? सो देन दैट्स व्हाई व्हाट विल हैपन, द स्टॉपिंग पोटेंशियल, है ना? एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी व्हिच इज नथिंग बट Q into V. V is potential difference. V is potential difference. तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे Q का मतलब है E और V का मतलब है Vs, ठीक है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? सो काइनेटिक एनर्जी फाइनल, अच्छा ये नेगेटिव है, राइट? सो माइनस, नेगेटिव पोटेंशियल है, सो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, राइट? फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? 0 हो गई। एंड इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी? काइनेटिक एनर्जी मैक्स। सो Vs, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स is nothing but E into Vs, which is also nothing but H nu minus nu naught, ठीक है? तो ये रिलेशन हो गया। कुल मिला के अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है तो इलेक्ट्रॉन हटा दो, 2 वोल्ट क्या हो जाएगा आपका? स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब यहाँ पे देख सकते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन, है ना, फ्रीक्वेंसी ओवर हियर। ये किस पे डिपेंड करेगा? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, ठीक है? किस पे डिपेंड करेगा? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, न्यू वैल्यू पे। तो अगर मान लो कहीं पे ऐसा दे रखा हो, ऐसा कुछ डायग्राम दे रखा हो, लेट्स से यहाँ पे लिखा हो पोटेंशियल V और यहाँ पे लिखा हो करंट, फोटो करंट, दैट इज सैचुरेटेड करंट, मतलब मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी? वो इतनी होगी। तो क्या होगा? लेट्स से, राइट, स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ पे अगर नेगेटिव वैल्यू आएगी, जैसे मान लो -4 वोल्ट, -3 वोल्ट, दैट इज द वैल्यू जहां पे मैं बोलूंगा फोटो करंट 0 हो गया था, राइट? स्टॉप हो गया था, राइट? फोटो करंट की वैल्यू 0 कहाँ पे हुई थी? स्टॉपिंग पोटेंशियल पे, सही है ना? करंट 0 हो गया था। तो अगर मान लो ऐसा कुछ ग्राफ है ना, ये सैचुरेटेड वैल्यू को जा रहे हैं से, और ये एक न्यू1 लेट्स से मान लो करस्पॉन्ड कर रहा है ये न्यू2 को, ये फ्रीक्वेंसी है। तो न्यू1 का मतलब क्या हुआ? न्यू1 इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन न्यू2। क्यों? क्योंकि इसके कारण स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा है, मतलब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, राइट? आपने न्यू1 जब एनर्जी डाली तो स्टॉपिंग पोटेंशियल -4 वोल्ट का लगाना पड़ा। इसका मतलब क्या हुआ कि काइनेटिक एनर्जी उन इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादा थी। इसका मतलब क्या हुआ? न्यू1 इज ग्रेटर देन न्यू2। समझ में आई बात? ऐसा ग्राफ है ना? दिस इज इफ इंटेंसिटी इज सेम, है ना, इंटेंसिटी इज सेम। अब व्हाट इज द रोल ऑफ इंटेंसिटी? द मैग्नीट्यूड ऑफ फोटो करंट डज नॉट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे भी एक नोट करके लिख लेते हैं, नोट। मैग्नीट्यूड ऑफ फोटो करंट का मतलब क्या है ना? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, इमिटिंग पर सेकेंड, क्योंकि यही तो चार्ज देगा, है ना? करंट क्या होता है? टोटल चार्ज पर सेकेंड, राइट? सो मैग्नीट्यूड ऑफ फोटो करंट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटिंग पर सेकेंड डज नॉट depend on frequency of light, but it depends on
intensity of light. Intensity of light, intensity, or you can say brightness. Brightness of light. Brightness का मतलब क्या है? अगर मान लो दो बल्ब सोर्स है ना, दो बल्ब सोर्स है, एक ज्यादा ब्राइट है, इसका मतलब है एक बल्ब ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन छोड़ रहा है पर सेकेंड, है ना। कोई ज्यादा तेज चमक रहा है, उसका मतलब क्या हुआ, उसमें ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स निकल रहे हैं, दैट इज ब्राइटनेस, है ना। अभी हमने वो पढ़ा था 60 वॉट और ये सब, तो नंबर ऑफ फोटॉन पढ़ा था, राइट, कि कितने फोटॉन्स निकल रहे हैं, राइट, नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकेंड। तो कोई ज्यादा चमक रहा है, इसका मतलब उसकी ब्राइटनेस ज्यादा है, इसका मतलब नंबर ऑफ फोटॉन ज्यादा निकल रहे हैं पर सेकेंड। तो ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि इसमें जो फोटोन गिर रहा है, फोटो करंट इस बात पे, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कमिंग आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस इस बात पे डिपेंड नहीं करते, जो फोटोन गिर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। ज्यादा फ्रीक्वेंसी होने से इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो सकती है, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कमिंग आउट ऑफ द मेटल सरफेस इज नॉट गोइंग टू बी मोर, है ना। सो इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, बट इट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी का मतलब क्या है, कितने नंबर ऑफ फोटोन गिर रहे हैं, है ना, कितने नंबर ऑफ फोटोन गिर रहे हैं। इंटेंसिटी का मतलब क्या है, intensity means number of photons falling on per unit surface area per second, है ना। मान लो हमने एक बहुत बड़ी सरफेस ले ली है, हमने कहा कि इसमें मान लो 10⁴ फोटोन गिर रहे हैं, और एक हमने छोटी वाली सरफेस ले ली है ना, मान लो बहुत, उस पर भी 10⁴ फोटॉन्स गिर रहे हैं, तो कहाँ पे इंटेंसिटी ज्यादा होगी, है ना, यहाँ पे इंटेंसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे छोटे सरफेस एरिया में ही ज्यादा लाइट गिर रही है, राइट। सो नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकेंड, ठीक है, इज रिक्वायर्ड, बट पर यूनिट सरफेस एरिया इज आल्सो देयर, ठीक है। जिसकी पर यूनिट लेट्स से सरफेस एरिया में ज्यादा फोटॉन्स गिरेंगे, वहां पे क्या होगा, राइट, वहां पे इंटेंसिटी ज्यादा होगी, ब्राइटनेस ज्यादा होगी। ओवरऑल टोटल सरफेस एरिया में टोटल नंबर ऑफ फोटॉन ज्यादा गिरेंगे। अगर पर यूनिट सरफेस एरिया नंबर ऑफ फोटॉन ज्यादा गिर रहे हैं, तो टोटल सरफेस एरिया में भी ज्यादा गिरेंगी। बात समझ में आ रही है। मान लो हमारी यूनिट सरफेस एरिया में 10⁴ गिर रहे हैं, आपकी मेटल सरफेस है मान लो 4 × 10 4 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर में 10⁴ गिर रहे हैं, तो 4 मीटर स्क्वायर में कितने गिरेंगे, 4 × 10⁴, ठीक है। तो ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स गिरेंगे तो इंटेंसिटी ज्यादा होगी, तो नंबर ऑफ करंट ज्यादा निकलेगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे, राइट। सो मैग्नीट्यूड ऑफ फोटो करंट डिपेंड्स ऑन intensity of light, not the frequency of light. So we can write hence photocurrent is proportional to intensity of light. बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो जो भी लाइट है उसमें इतनी मिनिमम एनर्जी काइनेटिक इतनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए कि भाई, है ना, कम एनर्जी के फोटॉन्स डाल देंगे तो भी फोटो करंट नहीं दिखेगा, राइट। फ्रीक्वेंसी का बस इतना ही रोल है कि बस मिनिमम एनर्जी उनके पास होनी चाहिए, उन फोटॉन्स के पास, है ना। ज्यादा फोटॉन्स डाल के भी हो सकता है फोटो करंट ना दिखे, कब, जब उनकी एनर्जी, उनकी जो फोटॉन्स की एनर्जी है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम हो, ठीक है। बट एनीवे यू कैन रिमेंबर दिस। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आई थिंक दिस इज डन, ठीक है। एनी डाउट टिल हियर? ओके, ठीक है। तो अब बात आती है, थोड़ा सा क्विकली मैं जो है ना इसके क्वेश्चंस आपको दिखा देता हूँ, एंड आई विल बी टेलिंग यू द सॉल्यूशंस। तो देख लेते हैं कि भाई ऐसे क्वेश्चन कैसे हैं इस पे, ठीक है। जस्ट बिफोर लीविंग
so that I want ki you can understand how to apply the, let's say, application, or how to apply concept. तो ये 30 से है. Let's say I'm going to read. The photoelectric effect consists of emission of electrons from the surface of metal when the metal is irradiated with light. तो ये कह रहे हैं कि भाई जब लाइट गिर रही है तो फिर उससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे. A photon with minimum energy of this is necessary to eject an electron from the barium. तो ये minimum energy का मतलब क्या है? वर्क फंक्शन दे रखा है phi. What is the frequency of radiation corresponding to this value? What they are asking is nu naught पूछ रहे हैं कि भाई nu naught क्या होगा. तो you know h nu naught is nothing but this. तो nu naught निकल जाएगा. Will the blue light of wavelength this will be able to eject the electron? So you have to find कि भाई 450 नैनोमीटर होगा तो क्या निकाल पाएगा या नहीं. तो न्यू नॉट के करस्पॉन्डिंग लैम्डा नॉट निकाल सकते हैं. सी बाई लेट्स से न्यू नॉट है ना. न्यू इक्वल्स टू सी बाई लैम्डा, तो लैम्डा नॉट इज सी बाई न्यू नॉट. अगर ये लैम्डा वैल्यू जो है ना, राइट, if it is lambda value is going to be more than that 450, ठीक है. अगर ये lambda value, right, तो ये जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो कम होगी, एनर्जी विल बी लेस देन दिस एनर्जी है ना, दिस एनर्जी इज गोइंग टू बी मोर. तो अगर मैं थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा एनर्जी डाल रहा हूँ तो क्या होगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखेगा. समझ में आ रही है बात? अगर लैम्डा इससे ज्यादा है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो क्या होगी? कम होगी. और ये वैल्यू ज्यादा होगी, तो एनर्जी ज्यादा है तो यस दिखेगा. अगर इसका उल्टा हुआ तो राइट, तो फिर नहीं दिखेगा. समझ में आया? 31. फाइंड द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मतलब लैम्डा नॉट, ठीक है, of photoelectric effect when copper surface, a sodium surface and cesium surface. The work function are given. आपको वर्क फंक्शन phi की वैल्यू दे रखी है which is different 4.5, 2.3 and 1.9 electron volt, and they are asking बताओ lambda naught क्या होगा. तो ये तो बहुत आसान है. What we can do is इसमें हम वो 12,400 वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, है ना. Energy is nothing but hc by lambda, right, which is nothing but 12,400 divided by lambda. यहाँ एनर्जी दे रखी है 2.3 या 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो कैन यू कैलकुलेट विद रेस्पेक्ट टू दैट. तो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिल जाएगी. सही है. 32. एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टॉप द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कॉपर प्लेट इज दिस. तो इसका मतलब क्या है? ये स्टॉपिंग पोटेंशियल के हिसाब से दे रखा है ना. एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टॉप द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है. सॉरी, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टर्म्स गलत है ना. इजेक्शन तो होगा एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टॉप द करंट, राइट, दैट शुड बी सेम. आई थिंक दिस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है. स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है व्हेन रेडिएशन ऑफ दिस स्ट्राइक. सो यू कैन कैलकुलेट एच न्यू वैल्यू ओवर हियर एच सी बाय लैम्डा से. ये टोटल एनर्जी आपने डाली, ये न्यू नॉट से आपको क्या मिल गई? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. सो कैन यू कैलकुलेट वर्क फंक्शन? आपको टोटल एनर्जी पता है, राइट, एच सी बाय लैम्डा. आपको काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पता है, यू कैन कैलकुलेट वर्क फंक्शन. तो ये ऐसे है. तो आपको समझ में आ रहा है? क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई दिक्कत? ऐसे मैंने 2-3 क्वेश्चन ऐसे बताए हैं, आगे भी सब सिंपल, ठीक है. तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के आपको क्वेश्चंस करने हैं. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये ऑब्जेक्टिव में और सब्जेक्टिव में भी. तो अभी हमारा जो डिस्कशन बचा हुआ है, आई थिंक, राइट, वो एक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बचा हुआ है और ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आ गया. ठीक है. कल मैं एक आपकी क्लास लूंगा, आपका अनाउंस हो जाएगा, उसमें आपकी डिस्कशन भी करेंगे और एक सब टॉपिक पढ़ाना है कि ब्रॉडली बोल देते हैं हम हिंदी में, लेट्स से सॉरी इन इंडियन एसेंट में, राइट, बट देयर इज ए फ्रेंच साइंटिस्ट, तो वहाँ पे साइलेंट होता है, तो डी ब्रॉय इज द नेम, बट जनरली दिस इज अ कन्फेशन काइंड ऑफ कि थोड़ा इंडियन आदत बन गई है तो डी ब्रॉगली बोलते हैं. सो वी आर गोइंग टू सी
de Broglie, let's say, concept or dual nature of matter waves in next class. But the correct pronunciation is de Broglie. Right, okay, that's it. Chalo. Bye bye everyone. Any doubt you can stay, or else I am ending this meeting. Bye.